morning students, how are you? I Rahul Kumar Sinha welcome all of you in my YouTube channel Siddharth Institute Baka. My dear students, today we will study physics and our topic of physics today is motion, as you can see on the board. Dear student, what is motion? Motion means any object moves with respect to time. Many things we see around us. For example, a car runs on the road, water flows in the river. We see also leaves fall from the tree. It is also in continuous moving position. If we will put our hand on our heart, then definitely we will also listen heartbeat. It is also in continuous moving position. So motion means any object moves with respect to time. It is the definition. And its example, a car runs on the road, water flows in the river. Its opposite or converse, if we talk about rest. Rest means if any object does not move with respect to time. अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है, घूमती हुई मालूम होती है, तो उसे हम गति यानी मोशन कहेंगे, और वो अगर नहीं घूमे तो उसे हम रेस्ट कहेंगे, जैसे वॉल और हाउस। अब स्टूडेंट्स, इन सारे चीज को समझने के लिए हम इस बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर यह सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स है, इस सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज और स्टूडेंट्स, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें अंत में हम आपको शॉर्ट ट्रिक दिए। ये सारे समझाने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप सारे चीज को समझ जाएंगे। नाउ वी विल फोकस स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? Scalar means a quantity or a quantity in physics that has only magnitude. Magnitude means numerical value. Suppose a person is going by his bicycle, he covers a distance of 10 km, then 10 km represents magnitude. So scalar quantity represents only magnitude. It does not represent any type of direction. Its example, speed and distance. If we talk about its converse, that is vector quantity means a quantity in physics that requires both magnitude and direction. Then we will call it is vector quantity. Example, displacement and velocity. Now students, we will move forward. We will study now distance and displacement. Dear student, what is distance and what is displacement? Let us understand. Distance means the actual length of a path. Means suppose you start walking on the road. If we'll measure the total length of path, then we'll call distance. But on the other hand, if we talk about displacement, then displacement represents shortest distance between 2 points. Here you can see on the board, every student, distance इन हिंदी डिस्टेंस को हम दूरी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक ही बोर्ड पर पढ़ लेते हैं ताकि दोनों का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए, साथ साथ दोनों का डिफरेंस भी समझ में आए। डियर स्टूडेंट, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट इज स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, बट displacement is a vector quantity. It requires a particular direction. Next, it can never be zero. Distance of an object can never be zero, but displacement of an object can be zero. Number 4, distance is always positive, but if we talk about displacement, it may be positive or negative. Number 5, it represents maximum length. But if we talk about displacement, it represents least or shortest length. Now dear student, we will focus speed and velocity. We will learn what is speed and velocity. Dear students, हम लोग speed और velocity को भी एक साथ पढ़ लेते हैं, ताकि साथ साथ हम लोग इसके differences को भी पढ़ लें। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके आप दोनों को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ताकि आप डेफिनेशन के साथ साथ इसके डिफरेंसेस को भी पढ़ लें। नाउ स्टूडेंट्स, विल अंडरस्टैंड स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड मीन्स whenever we will cover certain distance with per unit time, then we will call it is speed. But if we will talk about displacement
or if we will talk about we cover a certain distance with per unit time in a given direction, then that only time we are talking about velocity. So velocity requires a certain type of direction. If we talk about speed, it does not require any type of direction. So speed is a scalar quantity, but velocity will be vector quantity. If we talk about the third point, it can never be zero, but it can be zero. It depends upon distance and time, because speed depends upon distance and time, but velocity depends upon the displacement and time, as it requires a certain direction. The speed is always positive, but if you talk about velocity, it may be positive or negative. But there are some similarities between speed and velocity. कुछ सिमिलरिटीज स्पीड और वेलोसिटी में है. हम कहीं भी आप लोगों को एसआई यूनिट के बारे में नहीं बताया. स्पीड एसआई यूनिट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी एसआई यूनिट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड. यानी स्पीड का भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड होगा. डियर स्टूडेंट, जब हम एक निश्चित दूरी को तय करेंगे एक निश्चित डायरेक्शन में समय के साथ, तो हम कहेंगे वेलोसिटी, और सिर्फ दूरी तय करते हैं बिना कोई डायरेक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे कहेंगे स्पीड. तो एक चीज और, हम एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं स्पीड के लिए. स्पीड का फॉर्मूला जब डेफिनेशन में है तो आप देख सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या कहेंगे. इस चौथे पॉइंट में आप लोग खुद, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका फॉर्मूला भी लिख करके आप लोग बता सकते हैं. देखिए यहाँ पर इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम. और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला हम लोग सीखे डिस्टेंस बाय टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम, या नहीं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इस दोनों का फॉर्मूला लिख के दिखा सकते हैं. Students, now we will move forward towards acceleration, uniform and non-uniform motion. Dear students, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में हम एक शॉर्ट ट्रिक दिए हैं. अगर आपने इसको समझ लिया तो ये टोटल चीज आपको समझ में आएगा. इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम आपको ये पूरा समराइज एक ही बार में बताएंगे, ताकि इसके जरिए आप सभी चीजों को समझ जाए. बहरहाल, लेट अस फोकस ऑन एक्सेलरेशन. सपोज ए पर्सन इज गोइंग बाय बाइसिकल. एक आदमी बाइसिकल से जा रहा है. अगर एक सेकेंड में वो अपनी वेलोसिटी को जज करे, तो ऐसे चीज को हम एक्सेलरेशन कहेंगे. मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स व्हाट, इफ एन इंडिविजुअल या एक पर्सन एक गाड़ी से जा रहा है, और अगर वह एक सेकेंड में यह जज करे कि कितना वेलोसिटी का चेंजिंग हुआ हमारे में, तो हम लोग इसे एक्सेलरेशन की संज्ञा देंगे. एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण. It is a vector quantity, student, and its SI unit is meter per second square. Meter per second square means in 1 second, how much intensity of velocity changes, that is acceleration. Acceleration, as it is a vector quantity, so it will definitely negative. So negative acceleration is called retardation. Now we will move forward, student. We will understand uniform motion, एक समान गति. If a body travels equal distance in equal interval of time, then we will call it is uniform motion. And if the object or body does not travel unequal distance, or we can say that if a body travels unequal distance in equal interval of time, then this type of motion is called non-uniform motion. After this, I will also teach you short trick, so that all of the things whichever I taught you, you will definitely understand. उस शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप सभी लोग समझ सकते हैं, और उस शॉर्ट ट्रिक को अभी हम बताएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे. इसी शॉर्ट ट्रिक में हम लोग सारे चीजों को समझ जाएंगे. वी विल लर्न एवरीथिंग whichever we had studied just few minutes before. Dear students, let us consider A is a point. A represents your house. Let us consider. C represents playground. D represents your friend's house, and D represents school.
द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस टू प्लेग्राउंड 1 किलोमीटर, फ्रॉम प्लेग्राउंड टू योर फ्रेंड्स हाउस 1 किलोमीटर, फ्रॉम योर फ्रेंड्स हाउस टू योर स्कूल 1 किलोमीटर। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग एक डिस्टेंस को समझेंगे और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हम लोग यहां से ए पॉइंट से बी की तरफ जाएं तो टोटल हम लोग कुल मिलाकर के 3 किलोमीटर कवर करेंगे। इफ वी विल गो फ्रॉम ए टू बी देन 1 1 1 मीन्स 3 किलोमीटर विल कवर। एंड फ्रॉम बी टू ए, अगर बी से ए भी आ जाते हैं तो 3 किलोमीटर कवर करते हैं। तो इधर से जाने में 3 किलोमीटर कवर किए, उधर से आने में भी हम लोग 3 किलोमीटर कवर किए, तो ये कुल मिलाकर 6 किलोमीटर हो गया। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इस चीज को आप समझ ले। मीन्स डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को चाहता है। अगर हम यहां से ए से बी की तरफ जाएं तो हमारा डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड। और अगर बी से होकर के हम ए की तरफ आए तो हमारा डायरेक्शन हो गया बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ए से बी की तरफ जाए तो देन वी विल कवर 3 किलोमीटर, सो वी विल राइट फॉरवर्ड के लिए +3 किलोमीटर। लेकिन अगर बी से अगर हम ए की तरफ आते हैं बैकवर्ड में तो यहां भी 3 किलोमीटर कवर करते हैं, बट इन निगेटिव सेंस। तो आप देखते हैं ये +3 किलोमीटर -3 किलोमीटर, अगर इस दोनों को मिलाते हैं तो टोटल आंसर 0 हो जाता है। यह 0 होने का कारण क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। इधर से जाने में फॉरवर्ड डायरेक्शन का यूज किया है, इधर से जाने में हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन का यूज किए। इसलिए इसे हम कहेंगे ए से बी तक जाने में हम जितना डिस्टेंस किया, बी से ए तक जाने में किए, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे सी से डी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ये दोनों फिक्स पॉइंट है ए और बी के लिए, तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से डी से बी तक अगर जाएं तो इसे हम भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं इसके बाद स्केलर और वेक्टर। जाहिर सी बात है, अभी डिस्टेंस आपको समझाए कि बिना कोई डायरेक्शन का अगर हम लोग मूव करते जाएं बी की तरफ तो हम कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हम कर रहे हैं, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, तब हम इसे कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद हम लोग स्पीड पे चलते हैं। अगर ए से सी तक जाने में हम 2 मिनट का समय लेते हैं तो हमारी ए से सी तक स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस 1 किलोमीटर टाइम 2 मिनट। तो 1 किलोमीटर में 2 मिनट से अगर हम भाग दे दें तो हमें स्पीड मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम सी से डी की तरफ देखें तो यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं, ए से अगर डी तक जाए तो हम 2 किलोमीटर ट्रेवल किए। कंसीडर कीजिए यहां पर भी हम लोग 2 मिनट का सहायता लिए, तो 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में 2 4 मिनट का सफर, 4 मिनट हम लोग ले लिए। तो स्पीड कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर बाय 4 मिनट, तो स्पीड इतना हो गया। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो यह फिर से वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में आते जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी को हर कीमत पर एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब डियर स्टूडेंट, अगर एक्सेलरेशन को देखें तो यहां पर आप समझ लीजिए, अगर ए से सी तक जाने में आपका स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है और सी से डी तक भी जाने में आपका 1 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी 1 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसे छोटे कंपोनेंट में तोड़ दें मीटर पर सेकेंड में, तो अगर ए से सी तक अगर हम जो गए वो स्पीड, वो वेलोसिटी 1 सेकेंड में हमारी कितनी बदल गई, तो इस चीज को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। मतलब ए से सी तक आप कंसीडर करो जाने में 20 मीटर पर सेकेंड आपको लगता है, सी से डी तक जाने में आपको 50 मीटर पर सेकेंड लगता है। ए से सी तक और सी से डी तक जाने में आप देख रहे हैं ये 20 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड है। अगर इसी में से आपका स्पीड जो बदल गया, इसी बदलाव में अगर मान लेते हैं इसे 2 सेकेंड चाहिए, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 20 से अब आपका स्पीड 50 पर चला गया, तब हम कितना कहेंगे, परिवर्तन कितना होगा, चेंजिंग कितना होगा, 30 का।
तो 30 मीटर पर सेकेंड, और कितना समय लगा हमें 2 सेकेंड, तो कटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन, यही टर्म को हम क्या नाम देंगे, एक्सेलरेशन। अगर हम इसके बाद अगर अगले टर्म की तरफ चलें तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है। अब अगले टर्म की तरफ अगर हम चले तो इसके तरफ बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इस चीज को आप समझ लें। अगर ए से सी तक जाने में 1 किलोमीटर लगाते हैं आप, सी से डी तक 1 किलोमीटर और डी से बी तक 1 किलोमीटर आप चलते हैं, और इसमें आप 1 घंटा ले रहे हैं, यहां भी 1 घंटा, यहां भी 1 घंटा। ए से सी तक 1 किलोमीटर तो आप 1 घंटा ले रहे हैं, सी से डी तक 1 किलोमीटर 1 घंटा, डी से बी तक 1 किलोमीटर 1 घंटा। डियर स्टूडेंट्स, यू कवर इक्वल डिस्टेंस, सी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, सभी जगह आपने इक्वल डिस्टेंस किया ट्रेवल, साथ साथ सभी जगह आप एक ही टाइम लगा रहे हैं, 1-1 घंटा का टाइम लगा रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही टोटल ए से बी तक जब हम गए, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर स्टूडेंट इसी में थोड़ा अगर चेंजिंग कर दें, यहां पर हम 4 किलोमीटर लिख दें, तो देख लीजिए यहां पर 1 किलोमीटर 1 आवर है, और तीसरे केस में 1 किलोमीटर 1 आवर है। ये दोनों इक्वल है, लेकिन यह क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। यही पर है, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो हम इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप यू लाइक माय वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू लॉट।